Any doubts to anyone in the previous lectures? Any doubts to anyone? No, sir. Okay, now I'm starting with the lecture now. So we were talking about no slip condition and shear stresses. And we observed that shear stress in case of Newtonian fluid was given by this expression. And I think now there is no ambiguity in how we get this expression. So now let me know the shear stress I am specifying here. Say this is a plate and this was the flow, and at any location A, say the velocity distribution looks somewhat like this. So now let me know this formula, this tau is equal to mu du by dy, ये फॉर्मूला जो है ये कहां के स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहा है? So if I say tau is equal to mu du by dy, now let me know du by dy is constant here or it is changing. This is u, say u infinity, and all these are values of u. My question is, when I say tau is equal to mu du by dy, तो ये shear stress की जो वैल्यू है, क्या ये इस बाउंड्री लेयर में, इस डेल्टा रीजन में कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? shear stress की वैल्यू, हाँ जी सर वेरिएबल है। वेरिएबल है। हाईएस्ट कहां पे दिख रही है आपको? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। tau is maximum at which location? Topmost point पे. Where du by dy will be maximum? Yes, sir. So where is du by dy maximum? Think about it in 30 seconds. At y plus delta. At y plus delta. What is y? At delta position only. See, I write down this Oh, point sir, as delta, B, delta. this point as C. So I'm marking A, B, C. So I'm asking you, Point B. सर पॉइंट बी पे होगा। point B पे होगा। कितने यस सर। who does not agree with this answer? Anyone who does not agree with this answer? Students are saying the maximum shear stress will be at point B. Is this correct or incorrect? So this is actually incorrect. And I will let you know how. तो du by dy क्या चीज है? स्लोप है? du by dy is slope? Maximum will be at point A. Maximum will be at point A. Now try to see Yes, sir. why it is so. Say this is at point A, this red curve. At point, say this. So I draw another curve. So यहां पे कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है। क्या है? ब्लू कर्व का वैसे तो आपको स्लोप ज्यादा लग रहा है अगर आप वैसे देख रहे हो रेड से। सो दिस वाज पॉइंट डी। तो ए पॉइंट पे रेड कर्व मैंने रेड टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, डी पॉइंट पे मैंने ये ब्लू टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो किसकी स्लोप ज्यादा है?
Now please remember definition of slope. Slope क्या होता है? Perpendicular upon base. तो इसमें perpendicular क्या है? du. इसका मतलब क्या हुआ? So please remember slope is not understood at this. Slope क्या होगी basically? Velocity में कितना change आ रहा है with distance. So here, what is the slope? ये angle slope नहीं है. This is not the slope, which is shown by blue and red curves. Because on the y-axis or say perpendicular axis is essentially what? This x-axis. And base is this y-axis. So it is opposite to what you learn in your most of the common cases. हाँ जी, clear है? सर दोबारा बता दीजिए एक बार. So here is u infinity and here it was 0. Say the curve was like this. Now, what do you mean by du by dy? अगर मैं यहां पे ले लूं एक, ये मान लीजिए एट अ डिस्टेंस है y और ये है एट अ डिस्टेंस y प्लस dy. मान लीजिए ये पॉइंट y प्लस dy है. And this is the total, say, delta. Now let me know, इस dy डिस्टेंस में से, this is dy डिस्टेंस, वेलोसिटी में कितना चेंज आया? ये मान लीजिए u1 था, ये u2 है. What will be the change in velocity? u2 minus u1 by u2 minus u1 by dy. dy. हाँ जी, क्लियर है? Yes. अब हम इस पॉइंट पे आए. अब मैं नीचे वाले पॉइंट पे आ रहा हूं. यहां पे क्या है? y 0 है और मान लीजिए मैंने dy पे यहां पे डिस्टेंस ले लिया. So this is at a distance dy from here. Now what is the velocity here? Say velocity here is u3. Here velocity is 0. So what is du by dy at this location? u3 minus 0 by dy. कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा? u3 minus 0 by dy is greater? Yes, sir. So please remember, in this case, the perpendicular direction is this and the base direction is this. क्योंकि normally जब आप slope find out करते हैं, आप normally slope को इस तरह से लिखते हैं, like this. So you normally say कि ये हमारे पास, so this is alpha, so this is perpendicular, this is base. आप ऐसे लेते हो. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? उल्टा है. इसमें क्या है? कौन सा एंगल ले रहे हो आप? This angle, and this is perpendicular and this is base. हाँ जी, clear है? So Yes, you sir. need to remember this thing. This is not the case in case of what you do in your common mathematics. The only difference is perpendicular की अब direction different है आपके normal direction. And is that clear? Yes, sir. So please remember, the shear stress value at the wall is called wall shear stress. And this is the maximum value at a given location. At a given x, the shear stress will be maximum at these points.
So along x, अब मुझे बताइए along x shear stress, wall shear stress की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? Say this is tau 1 wall, सर बढ़ेगी. tau 2 wall, and this is tau 3 wall. अब मुझे बताइए, मैं यहां पे आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखा देता हूं. फर्स्ट केस में मान लीजिए इस तरह से है. In second case, it has increased. And in the third case, it has further increased. अब आप बताइए किस में स्लोप जा रहा है, किस में y के साथ u में वेलोसिटी चेंज ज्यादा हो रहा है? थ्री पॉइंट पे डेल्टा 3 रीजन तक वेलोसिटी 0 से 0.99 u5 पहुंची थी. So this was the velocity change in delta 3. Same velocity change has happened in delta 2 and same velocity change has happened in delta 1. तो आप बोलते हैं du by dy, दोनों में वेलोसिटी चेंज सेम है. तीनों में वेलोसिटी चेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 0.99 u इंफिनिटी. हाँ जी, क्लियर है? तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी चेंज कितना है? du is what? If I take this point and this point, take this point and this point, take this point and this point, what is the velocity difference in all the three cases? हाँ जी, बताइए. हाँ जी, प्लीज स्पीक आउट. So velocity difference as in question नहीं समझ आया सर आप. As in? The question क्या पूछा आपने? मैंने क्वेश्चन ये पूछा, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं along the x direction. सर इसमें डेल्टा कम होगा सर, उसमें वो ज्यादा होगा. क्या कह रहे हैं? साइड बाय साइड. आपको ये समझ आ रहा है? पहले ये बताइए आप. सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, दोबारा रिकैप. Yes sir, ये तो समझ आ रहा है. सर आपने यहाँ पे डेल्टा 3 दो बार क्यों लिख रखा है सर यहाँ पर? डेल्टा 3 कहाँ पे? सर टाउ 2 और टाउ 3 पे सर जो है आपने जो y डिस्टेंस है सर आपने दोनों का डेल्टा 3 लिख रखा है. डेल्टा 3, ये डेल्टा 2 है ये. ओके सर. तो मैं क्या कह रहा हूं, जब फ्लूइड अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव करता है, हमने पढ़ा था कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अलोंग द लेंथ बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ जाती है. इसका मतलब हमने कहा था कि डेल्टा 3 is greater than delta 2 is greater than delta 1. Any doubts to anyone in this? अब डेल्टा 3, डेल्टा 2, डेल्टा 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? Thickness from the metal to the boundary layer जहाँ तक velocity is equal to v infinity नहीं हो जाती. हाँ, 0.99 जहां पे u इंफिनिटी पहुंच रहा है, आप उसको डेल्टा साइन कर रहे हो. हाँ जी, क्लियर है? तो डेल्टा कौन सा रीजन हुआ? वेलोसिटी जहां पे 0 से लेके 0.99 u इंफिनिटी तक वेरी कर रही है, वो लेयर कौन सी होगी? बाउंड्री लेयर. और उसकी थिकनेस को हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा. ये क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब हमने ये भी पता कि डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1. क्लियर है? तो किस केस में वेलोसिटी y के साथ जल्दी से चेंज हो रही है और किस केस में कम रेट से चेंज हो रही है? तो पहले वाले में ज्यादा तेजी से हो रही है. डेल्टा 1 क्योंकि डेल्टा 3 बड़ा है. यस सर. डेल्टा 1 सबसे छोटा है.
बेस छोटा है। हाँ, तो हमको अगर रेशियो सबकी लेके आनी है सेम, तो बेसिकली here the velocity is increasing at the maximum rate. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? tau1 wall should be greater than tau2 wall should be greater than tau3 wall. हाँ जी, किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं मतलब जितनी थिकनेस हमारी ज्यादा होगी उतना वो टाउ कम होगा। हाँ, जितनी थिकनेस कम है उतना उसके पास टाइम कम है अटैच रहने का। टाइम। जैसे मैं इसको स्पीड अगर बढ़ा दूं बहुत ज्यादा, मान लो तो ये u इंफिनिटी थी से 1 मीटर पर सेकेंड, अब मैं u इंफिनिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड करूंगा, तो रेड की बजाय कर्व कहां पे दिखेगा मुझे? हाँ जी, क्लियर है? तो ज्यादा स्पीड से भी बाउंड्री लेयर क्या होगी? ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। सो प्लीज रिमेंबर, जब बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इट इज गेटिंग लेस टाइम टू डेवलप द बाउंड्री लेयर। आप समझ रहे हैं ना? इसको वैसे मान के चलिए आप पूरी फैमिली बहुत तेजी से जा रही है, तो जो ऊपर वाले मेंबर्स होंगे उनको इंपैक्ट, मतलब बहुत कम लोगों को इंपैक्ट होगा, फिर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा अगर बहुत तेजी से जा रहे हैं लोग। सो प्लीज रिमेंबर दिस thickness of boundary layer we have already shown is inversely proportional to 1 upon Reynolds number. So delta upon L is proportional to 1 upon under root Reynolds number. And what is Reynolds number here? Reynolds number is given by mu 0 L by nu. तो जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना रेनॉल्ड नंबर बड़ा होगा, उतना ही डेल्टा छोटा हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? सर ये कहाँ से आया फॉर्मूले सारे मतलब रेनॉल्ड्स? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन ये डिस्कशन थोड़ी सी पेंडिंग रह गई थी। आई एम नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, वेट फॉर अ सेकेंड। नाउ we have established that when flow is from this direction, तो ये आपके पास डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है, ये थिकनेसेस, और हमने यहां तक पढ़ लिया है कि ये डेल्टा 1 और से डेल्टा ऐसे डेल्टा 3 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा 2 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा 1। ठीक है, तो वी एस्टैब्लिश दैट, ये हमने फॉर्मूला जो लेके आए कि डेल्टा की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल किसकी होगी? टाइम के और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के। दिस इज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा? व्हाट इज न्यू? डायनेमिक विस्कोसिटी बाय रो। सो व्हाट वी सॉ इज कि जब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो थिकनेस बाउंड्री लेयर की ज्यादा है। वो हमने देखा भी था, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा लेयर्स में, तो ज्यादा लेयर्स तक उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या इंपैक्ट आएगा वो हमने जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, इट केम आउट टू बी डिपेंडेंट ऑन अंडर रूट ऑफ दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्यों डिपेंड कर रहा है? Anyone? Any doubts? सर एक बार काइनेमेटिक का बता दीजिए, विस्कोसिटी पे डिपेंड क्यों कर रहा है? विस्कोसिटी पर पता है, डायनेमिक विस्कोसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा ये पता चल रहा है?
कि ये भी नहीं पता चल रहा अभी? अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, मान लो यहाँ पे वाटर मैंने फ्लो करवाया और मैंने हनी फ्लो करवाया, तो किस केस के अंदर इस प्लेट का इंपैक्ट ज्यादा होगा? हनी। हनी के केस में इसका मतलब हनी की डायनेमिक विस्कोसिटी ज्यादा है, एक तो ये बात होगी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। हनी क्लियर है? यस सर। ज्यादा है हनी के केस में। हनी क्लियर है? यस सर। नाउ कमिंग टू डायनेमिक, फ्रॉम डायनेमिक टू काइनेमेटिक, हमें काइनेमेटिक की जरूरत क्यों पड़ रही है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है? अब काइनेमेटिक में क्या हो रहा है, वी आर डिवाइडिंग द डायनेमिक विस्कोसिटी बाय रो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एग्जांपल में बोलूं, सो डेंसिटी इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम, मोमेंटम या उसका मास। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आपके पास ये बॉल है, से दिस इज मेटल बॉल एंड से दिस इज अ प्लास्टिक बॉल। दोनों को आपने सेम फोर्स से थ्रो किया, मान लो सेम आप, तो आपको क्या लगता है किस में मोमेंटम ज्यादा होगा? मेटल बॉल। आपने देखा भी होगा, आप टेनिस बॉल को थ्रो करते हो और एक लेदर बॉल को थ्रो करते हो, कौन सी ज्यादा दूर जाती है? लेदर बॉल। लेदर बॉल। इसका मोमेंटम ज्यादा है ड्यू टू मास। अगर सेम साइज का बॉल है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यस सर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए ये भी ए फ्लूइड है, ये बी फ्लूइड है, दोनों की काइनेमेटिक, दोनों की डायनेमिक विस्कोसिटी सेम है, से म्यू ए म्यू बी। सो आई एम सेइंग म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोहेसिव फोर्सेस सेम है, ए लिक्विड में भी और बी लिक्विड में भी। ठीक है, अब दोनों को मैंने प्लेट के ऊपर से पास करवाया, पहले ए लिक्विड को करवाया, ऐसे ही बी लिक्विड को करवाया, और इसमें मैं अब एक कंडीशन रख रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी। विस्कोसिटी इज सेम बट डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी। अब मुझे बात बताइए, प्लेट का इंपैक्ट या बाउंड्री लेयर थिकनेस किस केस में ज्यादा होगी, ए में कि बी में? सर बी में ज्यादा होगी। बी में ज्यादा होगी। रीजन? सर डेंसिटी कम है तो मोमेंटम कम होगा, तो बाउंड्री लेयर पे इफेक्ट उसका कम आएगा, तो इसलिए ज्यादा थिकनेस आ जाएगी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेट फॉर अ सेकेंड, से म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी एंड रो ए इज ग्रेटर देन रो बी। तो यहां पे मैं एक बना रहा हूं इस तरह से, और इस केस में मैं बना रहा हूं इस तरह से। सो दिस एट एनी पॉइंट डेल्टा बी and here say it is delta A. So what should I write down here? Delta A, डेल्टा बी इज ग्रेटर देन डेल्टा ए। delta B is greater than delta A, और delta A is less than delta B. किसी को कोई डाउट? And why is it is so? ये ऐसा क्यों हुआ? Why it is so? हाँ जी, why the boundary layer thickness of डेंसिटी ज्यादा है is तो greater than A? डेंसिटी कम है सर तो बाउंड्री उसकी कम हो जाएगी सर। क्योंकि इसमें जैसे ये यू इन्फिनिटी से जा रहा था, ये भी यू इन्फिनिटी से जा रहा था, तो इसके अंदर कुछ मोमेंटम था। अब इसको मान के चलिए ये लेदर बॉल थी और ये टेनिस बॉल थी,
और इसको ये कुछ रोक रहा था, तो किस केस में ज्यादा इंपैक्ट होगा? जिसकी डेंसिटी कम थी। जी सर। So please remember that's why we are interested in kinematic viscosity, क्योंकि ये ट्रू सेंस में बताता है कि वो कितना इस प्लेट का इफेक्ट होगा. So that's why we say mu upon rho, and this is the true index of viscosity, and this is called kinematic viscosity. तो जितनी डेंसिटी कम होगी उतना उसका खुद का मोमेंटम नहीं होगा, तो उसको इंपैक्ट ज्यादा होगा. आप समझ रहे हैं? अगर आप में खुद आपका मास नहीं है तो आपको कोई भी अपोजिंग फोर्स आपकी वेलोसिटीज को कम कर सकती है, लेकिन अगर आप में मास बहुत ज्यादा है तो अपोजिंग फोर्सेस आपकी वेलोसिटीज को उतना इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई द बाउंड्री लेयर थिकनेस इज ग्रेटर इन केस ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल्स एज कंपेयर टू हाई डेंसिटी मटेरियल्स, अगर उनकी डायनेमिक विस्कोसिटी सेम है तो. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. Any doubts to anyone? So now I am coming to the concept we were discussing. So boundary layer thickness is proportional to square root of kinematic viscosity, which we have already discussed, and also it is proportional to the under root of time. टाइम का क्या मतलब हुआ? जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यहां तक जब पहुंचा उसने सिर्फ इतना टाइम स्पेंड किया, T1. T1 क्या होगा? U इंफिनिटी इंटू क्या लिखूं मैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x1 है, तो कितना टाइम स्पेंड किया? x1 अपॉन U इंफिनिटी. दिस इज T1. यहां तक पहुंचते हुए T2 टाइम स्पेंड किया, तो T2 इज x2 अपॉन U इंफिनिटी. तो जितना टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहा है कोई भी लिक्विड, so due to that the thickness of boundary layer is increasing, and that was the reason कि thickness along the plate increase कर रही है. So we identified through experiments that there are two parameters which impact the thickness of the boundary layer. One is kinematic viscosity and other is the time. तो ये हमने experimentally find out कर लिया दोनों चीज. अब बस इसको हमने मैन्युपुलेट किया और कुछ भी नहीं किया. टाइम क्या होगा? You know that speed is equal to distance upon time and time is equal to distance upon speed. So what is distance? Total distance is L. What is the speed? Speed is U infinity, free stream velocity. So we say L upon U infinity. So you are able to see here L upon U infinity. So this is what is time. So you have changed the time. So time has been written like this. Now what you are doing is you are changing kinematic viscosity. You can change to mu upon rho, or you can keep it like this only. So please remember, Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous force. So when I say Reynolds number is the ratio of inertia force to viscous force. Or please remember, in this case, this is noted by RE subscript X. That is, how does Reynolds number vary along the X direction? And this is equal to what? This is equal to essentially this thing. L mu 0 upon nu. So this is L mu 0 upon nu.
or Lu infinity upon nu. So this is the value of Reynolds number that represents the ratio of inertia force to viscous force. तो जितना Reynolds number high होगा, now let me know, what do you expect? Boundary layer thickness छोटी होगी कि बड़ी होगी? सर छोटी होनी चाहिए। छोटी होगी. So that is what we have observed in the experiment also, that delta upon L, that is the ratio of boundary layer thickness to the length of the plate, is proportional to 1 upon Reynolds number under root. That is, it is inversely proportional to the square root of the Reynolds number. So this is the crux, that when the fluid flows over the plate, the boundary layer thickness increases. Also, if the Reynolds number is high, the boundary layer thickness will decrease. And if you are having two fluids with same dynamic viscosity, then the fluid with higher density will have lower value of boundary layer thickness, and vice versa. Are you clear? Hai? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Yep. Haan. So the density of the liquid can vary depending upon the cross section of the pipes. And if we insert a plate in such a pipe which has varied cross sections, then how can kinematic, then also we'll use the same kinematic viscosity. So what you are saying is, अगर मान लीजिए आप water flow करवा रहे हैं, so you know that water does not change its density under normal circumstances. It remains a constant. चाहे आप ऐसे फ्लो करवा लें, इसको मान लीजिए एक छोटे चैनल में कराएं, फिर एकदम से डाइवर्जिंग सेक्शन में ले जाएं, will there be change in density of water flowing in this pipe? Let me know. But अगर मान लो मैं एयर फ्लो करा रहा होता, तब चेंज होगी डेंसिटी? Yes sir, तब चेंज होगी. ठीक है ना? तो what I am stating is, in case of what? Newtonian. Liquids. अगर मैं gases के बारे में बात करूं, then you will have to see the compressibility effects. Compressibility effect मतलब there is change in density also with location. Then it will not be easy to define काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि वो उस पे किस बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा. क्योंकि आप जब आप म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो करेंगे, तो रो भी फंक्शन किसका हो जाएगा? एक्स वाई जेड और टाइम, तीनों चीजों का, चारों चीजों का हो जाएगा, लोकेशन का भी और टाइम का भी, अगर ये एयर होती. Yes sir. यानी क्लियर है? Yes sir. So that is there. So any doubts to anyone? So we are talking about liquids only. तो liquids के अंदर density we assume to more or less remain constant. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? Any doubts to anyone? Now, I am coming to this point, which we have discussed earlier also. So this is a little bit much more clear picture in which we have drawn two kinds of curves. One is called flow curve and other is called viscosity curve. So flow curve is what? Essentially, जो हम normally plot करते आ रहे हैं, shear stress versus shear strain rate. And we have observed that in case of Newtonian fluid, this is a straight line with a constant slope. And all of the non-Newtonian fluids have non-linearities, as well as they may not start from the origin. So to interpret this kind of behavior in some other fashion also, that is viscosity curves, जो आपने कल क्वेश्चन भी पूछा था, viscosity as a function of
shear strain rate. इसका मतलब क्या हुआ, आपने सेम लिक्विड ले लिया, जैसे वाटर ले लिया, आपने वाटर में सिलेंडर घुमाया, पहले 100 आरपीएम पे, फिर 200 आरपीएम पे, फिर 500 आरपीएम पे, क्या उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है? अगर विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो इस तरह से है, सो दैट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड. अगर विस्कोसिटी कुछ देर कांस्टेंट है और ज्यादा तेज घुमाने से उसकी विस्कोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, देन दैट इज योर सूडोप्लास्टिक. तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सूडोप्लास्टिक? हैव यू सीन, जब आप कार पे स्प्रे करते हैं, हैव यू सीन स्प्रेइंग अ कार इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या आपने कहीं बाहर वर्कशॉप में? तो अगर मैं नोजल की स्पीड को या फ्लो रेट को कम कर दूं तो विस्कोसिटी बढ़ेगी जो स्प्रे से निकल रहा है पेंट की, अगर मैं फ्लो रेट को बढ़ा दूं तो विस्कोसिटी कम होगी. And you understanding my point? Say you have a bucket of paint. पेंट इस बकेट में जब होता है वो बहुत विस्कस होता है, लेकिन जब पेंटर अपने ब्रश को इसमें इमर्स करता है और उसको दीवार पे बहुत जल्दी जल्दी से लगाता है, तो व्हाट हैपेंस? विस्कोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस. डिक्रीजेस. इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे पेंट में और यहां पे पेंट में कॉम्पोजिशन में तो कोई फर्क नहीं है. फर्क क्या हुआ, यहां पे कोई शियर स्ट्रेन नहीं लग रहा था रेट, और जब उसने ब्रश को बहुत तेजी से घुमाया तो क्या हुआ, उसमें शियर स्ट्रेन रेट लग रहा है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज. So this kind of behavior is shown by pseudoplastic liquids, and paint is one of the examples. आप समझ रहे हैं? Pseudoplastic liquids हैं बेसिकली, जैसे पेंट है या ब्लड है, तो क्या होगा बेसिकली, मान लो अगर मैंने पेंट लिया, पेंट में मैंने एक सिलेंडर घुमाना स्टार्ट कर दिया, इनिशियली उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है, लेकिन जब मैंने सिलेंडर को और तेजी से घुमाना स्टार्ट किया, what will happen? The viscosity of that paint will decrease. और ये आप ऑब्जर्व करते हैं, जब कोई भी पेंटर पेंट करता है, आप कभी देखना ध्यान से, वो बहुत तेजी से ब्रश चलाता है, वो धीरे से ब्रश नहीं चलाता. तो उसका रीजन है कि he wants to maintain high shear rate so that the viscosity is low while he is painting the wall. अदरवाइज बहुत सारा मटेरियल वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा, which is not required. And the reason for that, this kind of behavior is shown through this picture. I'm giving you 30 seconds, then I will ask you what do you understand from this picture. This is the example of pseudoplastic liquids. The upper 4 panels show while the liquid is at rest. There are 4 different kinds of pseudoplastic liquids, and the second or the below panel, that is 2, represents when they are in motion. So what are you able to see? What are you able to see? हाँ जी बताइए. सर द मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है सर. हाँ, तो जब फ्लो हो रहा है, तो जैसे अगर हम पहले वाला केस देखें, एक में इसमें ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ओरिएंटेशन में ये आपस में ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी ज्यादा है. जब फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो सब रीओरिएंट हो गए एंड द विस्कोसिटी हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग. लाइकवाइज कुछ मटेरियल्स में इस तरह से मॉलिक्यूल्स की चेंज हो सकती हैं, तो जब उसमें फोर्स लगेगी टू फ्लो, ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी एंड दे विल नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो
तो विस्कोसिटी उस वजह से कम हो रही है, और यहां भी विस्कोसिटी कम हो रही है ड्यू टू डिस्टेंस एज वेल एज ड्यू टू चेंज इन शेप। हाँ जी, आपकी कोई और क्लास तो नहीं है इसके बाद? सर है सर। So can you spare 2 minutes? जी सर करवा दी। ठीक है। And this is disaggregation. Disaggregation means that they were aggregates of chains of molecules present. जब आपने उसको फ्लो करवाया वो एग्रीगेट्स टूट गए। So that is the reason कि जब हाई शेयर रेट लगाते हैं आप, हाई शेयर रेट का मतलब हो गया जब लिक्विड फ्लो कर रहे हैं और ये लिक्विड एट रेस्ट है, जब फ्लो कराने आपने स्टार्ट कर दिए तो व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से, स्ट्रेचिंग होने की वजह से, डिफॉर्मेशन होने की वजह से या डिसएग्रीगेशन होने की वजह से विस्कोसिटी रिड्यूसेस, एंड दैट इज द रीजन फॉर reduction in viscosity in case of pseudoplastics when you increase the shear strain rate. Now I am leaving you with a 1-minute video and please go through it. We will reflect on it in the next lecture. I am leaving with you a video. So please try to see it carefully. Viscoelastic material. So this is the silly putty. This is commercially available and this is used for nano finishing of the components, so that you will learn in manufacturing processes. But we have a different purpose for this as far as this course is concerned. So this is a viscoelastic material. So this is not a solid, but this is a viscoelastic fluid. What I can do is I can make a small ball out of this fluid, and now if I throw it on a table, there is rebounding of this. So this means there is some kind of elasticity in this fluid. But ironically, if I allow this fluid, to remain like this, after some time, it will become a shape of a flat plane. That is, it will not be able to retain its original shape. So that is why it is called a viscoelastic fluid. Because when I was applying, for instance, now see, it has adhered to this, and now it is going down, and now it is behaving as if it does not have its memory, so it will not be able to retain its original shape. Now see, it has flattened out. So that is why it is called viscoelastic fluid, because it does not have perfect memory. Had it had perfect memory, it would have retained its original spherical shape. But it is now becoming flat, so it is actually deforming under its own weight, and that is one of the characteristics of fluids. So any doubts to anyone? Sir. Any doubts? Otherwise, I will break for today, and we will go forward from this point in the next lecture. Sure, sir. Okay. Okay, sir. रिकॉर्डिंग है ना सर, आज रिकॉर्डिंग। हाँ, I will send it that. Okay.